Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 5 for the subject of English, and we are going to begin in this lecture unit number 19, which is a description. The description name is The School Watchman, and this is lecture number 1 from unit number 19. In this lecture, we will do reading of the lesson. I will give you the meanings of difficult words and you will write down those word meanings in your classwork notebook. So please open your English classwork notebook and prepare today's index by writing serial number, date and topic. Dear grade 5 students, before we begin with the reading, just make sure that you have your English students book, your English classwork notebook and your complete stationery with you. Listen to the teacher attentively and very carefully and write down everything said by your teacher in your notebook. If you don't understand anything, you can rewind the video and listen it again. Okay. Description is spoken or written representation of account of a person, object or event. जो description type के text होते हैं इनमें actually description के नाम से जाहिर है कि इसमें कुछ ना कुछ डिस्क्राइब हो रहा है, या तो वो किसी पर्सन के बारे में डिस्क्रिप्शन होगी या वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में होगी या किसी इवेंट के बारे में होगी. अब ये डिस्क्रिप्शन किस बारे में है? द स्कूल वॉचमैन, ऑफ कोर्स ही इज़ अ पर्सन. तो इसमें हम उसकी जो स्कूल वॉचमैन है उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे कि उनकी रूटीन क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनकी अपीयरेंस कैसी है, वो दिखने में कैसे हैं और उनका मिजाज कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है. हम ये सब उनके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे. उनका नेम है मिस्टर उमर, हु इज़ अ स्कूल वॉचमैन. मिस्टर उमर लिव्ड इन अ स्मॉल हट दैट वॉज इन द कॉर्नर ऑफ द स्कूल. The school children used to irritate him, tease him, but he was a very dutiful man. He took his duties more seriously than was demanded of him. Mr. Umar's back had bent with the burden of his life challenges and with the age. Of course वो बहुत सालों से स्कूल के वॉचमैन की ड्यूटीज़ दे रहे हैं. अब वो बहुत ओल्ड हो गए हैं तो उनकी जो बैक है वो बेंड हो गई है और उनका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा स्टर्न स्ट्रिक्ट किस्म का हो गया है और स्टूडेंट्स उन्हें बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं, उन्हें तंग करते हैं. हम ये सारी चीज़ें इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं. सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 126 एंड राइट डाउन डेट एंड डे ऑन द टॉप ऑफ दिस पेज. Then open your English classwork notebook and prepare today's classwork page for words meanings. I am going to read this lesson. You will read it with me. Just put your finger on every word that I am reading and write down all the word meanings that I will write down on here on the screen in front of you. Okay, page 126. I am going to begin the reading. The school watchman. Mr. Umar was a school watchman and he lived in a hut in one corner of the schoolyard. There was nothing, all creations, that irritate and grieved Mr. Umar more than the school children. इसका क्या मतलब है कि मिस्टर उमर की लाइफ में जितने भी चैलेंजेस थे, जो भी कोई उन्हें टीज़ करता था, कोई भी चैलेंज, कोई भी टीजिंग उससे ज़्यादा नहीं थे जो स्कूल चिल्ड्रन उन्हें टीज़ करते थे, उन्हें इरिटेट करते थे. It was Mr. Umar's job to guard the school against possible burglary and generally to look after the building and the grounds. He took his duties rather more serious than it was demanded of him and had been able would long since have emptied the school, locked all the gates and fortified the premises so that none could enter, neither man nor beast nor above all school children. Okay. इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि मिस्टर उमर जो हैं वो उन्हें स्टूडेंट्स बहुत टीज़ करते हैं लेकिन फिर भी वो उनके स्कूल को गार्ड करते थे. बहुत सालों से वो अपनी ये ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे और अपनी ड्यूटी वो उससे ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते थे जितना उनसे डिमांड किया जाता था. मिस्टर उमर जो हैं वो स्कूल बंद होने के बाद तक स्कूल में रुकते थे, स्कूल के को लॉकडाउन करते थे और उसके स्कूल के प्रेमाइसेस का ख्याल करते थे, उसका ध्यान रखते थे, उसको गार्ड करते थे. और कोई भी स्कूल बंद होने के बाद जब मिस्टर उमर जो है उसको बंद कर देते थे उसके बाद कोई भी स्कूल में एंटर नहीं हो सकता था. कोई बच्चा भी नहीं, कोई इंसान भी नहीं, कोई घोस्ट भी नहीं, कोई बीस्ट भी नहीं, कोई भी नहीं. और उस टाइम में कौन स्कूल को सेफ गार्ड करता था? मिस्टर
Umar. It must have been thought and sight of the multitude of school children pouring through the gates morning after morning for years on end that had bent Mr. Umar's back, slowed his movements down to the slouch, and given him his overall air of dilapidatedness. Okay, slouch means stand or walk with our shoulders and head bent forward. Okay, इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सालों से स्कूल में आए और स्कूल से पास आउट होके गए, उन सब ने मिस्टर उमर को ही स्कूल को यहाँ पे गार्ड करते हुए देखा, मिस्टर उमर को ही यहाँ एज अ वॉचमैन खड़े हुए देखा। सब स्टूडेंट्स आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ ईयर्स के बाद वो पास आउट होकर स्कूल से चले जाते हैं। लेकिन मिस्टर उमर जो हैं, जो वॉचमैन हैं, वो कई सालों से यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और वहीं पे हैं। और अब उनकी एज, अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजड हो गए हैं और इस वजह से भी उनकी बैक जो है वो बेंड हो चुकी है, और जब वो चलते हैं तो उनके शोल्डर्स और उनका हेड जो है वो फॉरवर्ड बेंट है। इट वॉज सेट दैट ही हैड नॉट चेंज्ड हिज क्लोथ्स फॉर ईयर्स। ऐसा है नहीं, ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट अ डर्टी मैन कि उन्होंने इतने सालों से अपने कपड़े चेंज ना किए हों, लेकिन ये है कि किसी ने उन्हें कभी यूनिफॉर्म के बगैर देखा नहीं है। एंड स्लेप्ट इन दैम, सच वॉज देयर अपीयरेंस एट एनी रेट। एन अनटाइडी ग्रोथ लाइक ग्रे स्टंटेड वीड्स हैड ओवररन एन एरिया ऑफ हिज फेस, यानी कि उनके जो फेस है उसके ऊपर वाइटिश बियर्ड जो है वो ग्रो कर गई है। वन ऑफ हिज आईब्रोज वॉज इन अ परमानेंटली रेज्ड पोजिशन, उनकी जो आईब्रोज हैं उनमें से एक आईब्रो परमानेंटली रेज्ड पोजिशन में है, जैसे वो एवरी टाइम गुस्से में और स्टर्न किस्म के मूड में हैं। वाइल हिज आइज वर नेवर मोर देन हाफ ओपन, एज इफ ही वुड शट आउट एज मच एज पॉसिबल ऑफ द डिस्गस्टिंग स्पेक्टेकल विच द वर्ल्ड प्रेजेंटेड। हिज माउथ वॉज स्ट्रेच्ड इनटू अ स्नीयर, स्नीयर कहते हैं जिस तरह घूरने वाले अंदाज में आपके फोरहेड के ऊपर लाइंस बन जाती हैं, उस तरह की स्नीयर्स जो उनके पूरे फेस के ऊपर बनी हुई हैं। विच वॉज एज ऑफन एज नॉट फ्रथी एट द कॉर्नर्स। ओल्डर चिल्ड्रन सेड दैट मिस्टर उमर हैड बीन नोन टू स्माइल when his daughter and grandchild visited him, but he seriously doubted the existence of these personages. Okay. जो स्टूडेंट्स, ओल्डर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो पहले से स्कूल में पढ़ते थे और पास आउट होकर चले गए हैं, वो ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि मिस्टर उमर जो हैं वो स्माइल करते हुए तक कब देखे जाते हैं, जब उनकी डॉटर और उनके जो ग्रैंड चाइल्ड हैं वो आते हैं और मिस्टर उमर उनके साथ खेलते हैं, तब उन दिनों मिस्टर उमर जो हैं वो स्माइली होते हैं। Our primary grievance convincing Mr. Umar was the fact that his hut had been built under the apple tree. Mr. Umar in theory slept for a part of the day. कि मिस्टर उमर जो हैं वो दिन का बहुत थोड़ा सा टाइम सोते हैं, but it was a sleep which permitted him not only to hear the squelch of an apple falling onto the roof, but to distinguish between the squelch of an apple fallen due to the natural cause and the squelch of an apple whose fall had been provoked by the hand of a school child. In the latter case, one heard an angry roar from the interior of the hut and came away as rapidly as possible. Okay, इसका क्या मतलब है कि मिस्टर उमर जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत थोड़ा सा सोते हैं और वो इतना अटेंटिवली सोते हैं, जब वो सो भी रहे होते हैं तब भी उनकी सेंसेस इतनी अटेंटिव होती हैं कि अगर उनके, क्योंकि उनका जो हट है वो एक एप्पल ट्री के नीचे है, तो जब भी कोई एप्पल ट्री पर से हट की छत पे गिरता है तो मिस्टर उमर फ़ौरन से जाग जाते हैं और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि जो एप्पल है वो ट्री पर से खुद ही गिरा है या किसी बच्चे ने गिराया है। और अगर उन्हें ये पता चल जाए कि वो एप्पल किसी बच्चे ने गिराया है तो वो बहुत ज़ोरदार आवाज़, गुस्से वाली आवाज़ देते हैं और वो बच्चा वहाँ से फ़ौरन से भागने की जल्दी करता है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप आप लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो एवरी टाइम गुस्से में रहते हैं, एवरी टाइम स्टर्न रहते हैं। एक्चुअली उन लोगों का मिजाज ऐसा नहीं होता, बल्कि उनकी ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं कि उन्हें स्टर्न और गुस्सैले रहना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर स्टूडेंट्स तो उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करें।
Okay, grade 5 students, I hope you have written all the meanings and the words in your classwork notebook. So this is end of today's lesson. Just now note down your today's diary. First of all, you have to write down date, then subject, which is English, and then your homework, which is about reading of the lesson. You have to read this whole lesson with proper pronunciation and learn all the word meanings that are written in your classwork in this lecture. So good luck for your homework. Allah Hafiz.